Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is roots and coefficient of quadratic equation. So we will discuss today that what is the relation between the roots and the coefficient of quadratic equation. In this exercise we will discuss, we know that in quadratic equation, the formula for quadratic equation or the roots of the quadratic equation are minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. As we know that one root is minus b plus b square minus 4ac divided by 2a, and the other root is minus b square minus 4ac divided by 2a. It means that one root is this and other root is this. Now if we add these two roots, by adding these two roots, it means that sum of roots, and by adding these two roots we will get minus b by a. बुक में सॉल्व है, स्टूडेंट्स बुक से देख सकते हैं, बुक में अच्छी तरीके से सॉल्व है. And when we can find when we want to find the product of these roots, so this will be c by a. This will be c by a. So in this exercise we will discuss more about the product of roots and the sum of roots. So exercise number 2.3. Let's start exercise number 2.3. Okay, exercise number 2.3. Question number first. Without solving the equation, find the sum and the product of the roots of the following equation. हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे और इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. Question number first, part first, 4x square minus 4x plus 3 equal to 0. Exercise 2.3, question number 1. This is minus 3, not plus 3. Okay, in article we discussed that 4x square minus 4x minus 3. In previous video or in previous article we discussed that sum of roots is equal to minus b by a, and product of roots is equal to c by a. Now when we compare this equation to the standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0, then here a is equal to 4, b is equal to minus 4 and c is equal to minus 3. So sum of roots is equal to क्या बनेगा सम ऑफ रूट्स? ये बनेगा माइनस बी बाय ए माइनस बी माइनस 4 डिवाइडेड बाय ए मीन 4. सो सम ऑफ रूट्स is equal to minus into minus plus 4 by 4 is equal to 1, and product of roots is equal to c by a. So product of roots is equal to, what is the value of c? Is minus 3. Minus 3 divided by a is 4. So product of roots is this minus 3 by 4.
यहाँ पे हमने सिर्फ ये फाइंड करना था कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएंगे। इसके बाद इसी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मदद से हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि थोड़े बहुत कंफ्यूजिबल है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट उसको क्वेश्चन को समझे तो फिर बहुत इजी है, बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, इसी तरह हैं, आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। बहुत आसान है और हम इसको करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। गिवन इक्वेशन इज क्वेश्चन नंबर 2 that 2x square plus kx plus 6 is equal to 0. We have to find the value of k, but there is a condition in a given that sum of roots is equal to product of roots. So how can we solve it? Let's see. Given equation is 2x square plus kx plus 6 is equal to 0. And the given condition is sum of roots is equal to product of roots. इक्वेशन ये है, कंडीशन ये दिया गया है कि आपके साथ ये कंडीशन है, इस कंडीशन के हेल्प से आप k की वैल्यू को फाइंड करें। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये एक्सरसाइज पूरा बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ से आपने काम लेना होगा। First of all, to find sum of roots, as we know that sum of roots is equal to minus b by a। और अगर हम पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 6। a की वैल्यू क्या 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 6। नाउ वी नो दैट सम ऑफ रूट्स is equal to minus b by a. So sum of roots is equal to minus b की वैल्यू क्या k डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या 2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। नाउ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is equal to c by a. So product of roots is equal to c की वैल्यू क्या 6 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2 which is equal to 3. In given condition that sum of roots is equal to product of roots means, अगर हम इसको 2 का नाम दे दें इस इक्वेशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 2। तो इसका मतलब कि माइनस k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। This is the value of sum of roots and this is the value of product of roots, and as we know that from by given condition sum of roots is equal to product of roots. So this will be minus k by 2 is equal to 3. Multiply 2 on both sides. दोनों साइड्स को 2 पे मल्टीप्लाई करें, माइनस k is equal to 2 into 3 क्या बनेगा 6 बनेगा। ओके, एंड when we multiply or divide minus 1 on both sides, then it will be k is equal to minus 6. Now in next question, that what is find the value of k if sum of square of root is equal to the 13.
So let's start next question. Okay, in next question, in question number 3, they says that find the value of k if the sum of square of root of this equation x square minus 5kx plus 6k square is equal to 0 is equal to 13. क्या कहते हैं इसमें? कंडीशन को समझें, क्वेश्चन कंडीशन को समझें. ये एक इक्वेशन है, वो कहते हैं k की वैल्यू फाइंड करें. इस इक्वेशन में k है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 13. अच्छा, सबसे पहले हम कहते हैं कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा. हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स बनते हैं, तो हम एक रूट को कहते हैं अल्फा, दूसरे रूट को कहते हैं बीटा. अब ये हमें हेल्प देगा आगे. कैसे? अब जो सम ऑफ रूट्स है तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और हमें पता है कि वो माइनस बी बाई ए की इक्वल है. और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो इक्वल है अल्फा बीटा, वो हमें पता है कि सी बाई ए की इक्वल है. अब सी क्या है? ये. बी क्या है? ये. ए क्या है? ये. अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आपको a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू माइनस 5k एंड c की वैल्यू 6k स्क्वायर. नाउ आ जाएं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए माइनस ये अपना b की वैल्यू माइनस 5k डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1, तो ये 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5k डिवाइडेड बाई 1. डिवीजन में 1 की ज़रूरत नहीं है, तो 5k. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स आ गया 5k. नाउ अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाई ए. c इज 6k स्क्वायर और a की वैल्यू 1 है, लेकिन हम डिवीजन में 1 को नहीं लिखते, ज़रूरत ही नहीं है. अब गिवन कंडीशन में क्या है? वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13. सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट इज इक्वल टू 13. गिवन कंडीशन में ये है, तो हम क्या करेंगे? अब मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है. हाँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू है. ये अल्फा प्लस बीटा है ना, किधर है? ये अल्फा प्लस बीटा है, तो अगर इस पे स्क्वायर हम होल स्क्वायर कर देंगे तो इस पे भी होल स्क्वायर कर देंगे. लेकिन यहाँ पे मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं. और कैसे? हम खुद से प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा को ऐड करते हैं, माइनस 2 अल्फा को सब्ट्रैक्ट, और ये हम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम वापस इसको कैंसिल करना चाहें तो ये एक दूसरे के इन्वर्स है, कैंसिल हो जाएंगे, वापस हमें ये चीज़ मिलेगा. अगर हम बाय रूल्स करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं. अब देखें, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बनता है कौन सा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बनेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. माइनस 2 अल्फा बीटा अपनी जगह पे लिखें, इज इक्वल टू 13 अपनी जगह पे. नेक्स्ट स्टेप, अब आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो हम इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं. ये देखिए अल्फा प्लस बीटा है तो मैंने 5k लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया. माइनस 2 अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, कहाँ पे है? ये है, इसकी वैल्यू लिख लें. तो माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 13. 5 पे अगर हम स्क्वायर करें तो 25, k पे स्क्वायर करें तो k स्क्वायर. माइनस 2 इंटू 6 इज 12 और k स्क्वायर इज इक्वल टू 13. 25k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर इज 13k स्क्वायर इज इक्वल टू 13. और अगर हम 13 को बोथ साइड्स पे डिवाइड करें तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, ये 1 आएगा. तो k स्क्वायर की वैल्यू 13, और अगर हम इस पे स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख लें,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर हम इस पे रूट ले लें तो k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1। बहुत इजी है, बस सिर्फ कंडीशन को आपने समझना है कि इसमें ये कंडीशन क्या है और कैसे देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, this is that find the value of k if the roots of x square minus 5x plus k equal to 0 is differ by unity। क्वेश्चन के कंडीशन को समझें कि कंडीशन में क्या कहते हैं। ये गिवन इक्वेशन है, ये वो कहते हैं इसमें से k की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन एक मसला क्या, रूट्स आपने ऐसे लेने हैं कि उस रूट्स के बीच में 1 का डिफरेंस हो। क्या मतलब 1 का डिफरेंस, मतलब अगर एक रूट 1 हो तो दूसरा 2, अगर एक 4 हो तो दूसरा 5, अगर एक 7 हो तो दूसरा 8। तो इसका ये मतलब कि अगर एक रूट में अल्फा ले लूँ तो दूसरा रूट में अल्फा प्लस 1 लूँगा, मतलब उससे एक ज़्यादा या उससे एक कम भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। हम क्या लेते हैं, लेट the two roots be alpha and alpha plus 1 of the given equation। Let alpha and alpha plus 1 are the roots of the given equation। क्यों? क्योंकि कंडीशन में है कि when the roots of this equation are differ by unity, means differ by 1। So in sum of roots, this is the sum of roots, alpha plus 1 is equal to, we know that sum of root is equal to minus b by a। So alpha plus alpha 2 alpha minus b मतलब minus 5 divided by a is 1। So sum of roots 2 alpha plus 1 minus into minus 5 divided by 1, हम नहीं लिखते डिवीजन में 1 को। 2 alpha is equal to 5 minus 1, 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो प्लस से माइनस बनेगा जो कि ये 4 होगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, 2 पे डिवाइड करें तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। नाउ product of roots is alpha into alpha plus 1 is equal to, we know that product of roots is c by a। So the value of c is k and the value of a is 1। So alpha into alpha plus 1 is equal to k by 1 is k। यहाँ पे हम alpha की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ alpha here, तो ये बनेगा क्या, 2, ये बनेगा 2 plus 1 is equal to k। अब 2 plus 1 is 3 multiplied with 2 is 6। तो अल्फा की वैल्यू क्या, सॉरी k की वैल्यू क्या, 6। क्वेश्चन कंडीशन क्या था कि इसमें ऐसे दो रूट्स ले ले। अब रूट्स आप खुद से लेंगे, ऐसे नहीं है कि मतलब रूट्स वो गिवन है। हम अल्फा बीटा लेते हैं, कभी कभार अल्फा प्लस 1 ले लेते हैं। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पे कंडीशन क्या दिया गया है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसके जो रूट्स है वो डिफर बाय यूनिटी है 1। तो अगर एक अल्फा लेते हैं तो दूसरा अल्फा प्लस 1 लेंगे, बस यही कंडीशन है। बाकी ये क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये दिया गया है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर डिफर बाय 3। यहाँ पे रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन जो है वो डिफर बाय 1 था, तो हमने लिया अल्फा और अल्फा प्लस 1 रूट्स। लेकिन जब वो कहते हैं डिफर बाय 3 तो आप लेंगे अल्फा और अल्फा प्लस 3। बस ये दो रूट्स ले लें और बिल्कुल इसी तरह इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अल्फा और अल्फा प्लस 1 डिफर बाय यूनिटी था। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफर बाय 3 है, तो डिफर बाय 3 का मतलब ये कि अल्फा एक रूट होगा, अल्फा प्लस 3 जो है वो दूसरा रूट होगा। इसी तरीके से सॉल्व कर ले। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज that x square minus 5x plus k is equal to 0. This is the equation, and given condition is find the value of k if
3 alpha plus 2 beta is equal to 12 means that alpha and beta are the roots of the given equation. This is in given. उन्होंने कहा है given में कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स है और एक कंडीशन भी है साथ में कि 3 alpha plus 2 beta is equal to 12, ये गिवन में है, क्वेश्चन में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k. कैसे फाइंड करेंगे देखें, इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू k. तो वी नो के सम ऑफ रूट्स क्या होंगे -b/a, तो सम ऑफ रूट्स इज माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू -5 तो -5 डिवाइडेड बाय a, माइनस इंटू माइनस प्लस तो मतलब 5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 5, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें. Product of roots alpha beta is equal to, we know that this is c by a, so product of roots alpha beta is equal to c की वैल्यू k divided by a. So product of roots alpha beta is equal to k और a की वैल्यू क्या है 1, जिसको हम नीचे नहीं लिखते, डिवीजन में ज़रूरत ही नहीं है, तो k, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें. अब जो है मैंने ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करके इनमें से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है. इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सॉल्व करके इनमें से हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है. तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को या तो 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि बीटा और बीटा कैंसिल हो जाए, या 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाए. तो हम क्या करते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 by 2. 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो अल्फा के साथ 2 अल्फा, बीटा के साथ 2 बीटा, 5 से मल्टीप्लाई होके 2 10 बनेगा. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 2 बीटा है और यहाँ पे भी 2 बीटा है, मतलब ये कैंसिल हो सकते हैं. कैसे, अगर ये दो इक्वेशन एक दूसरे से माइनस करें तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट 4 from 1, ये इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करें. 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12, और ये जो है ये 4 है कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 10. और अलजबरा में हमें पता है कि जब भी हम अलजबरा, मैथ्स के अलजबरा में आते हैं तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं. देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस. अब 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा इज ओनली 1 अल्फा, 2 बीटा माइनस 2 बीटा के साथ कैंसल, और 12 माइनस 10 इज 2. क्या मतलब, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई. अल्फा की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करें ताकि बीटा की वैल्यू मिल जाए. यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस बीटा इज इक्वल टू 5. क्या, पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में पुट करें, क्या बनेगा, 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो -2 बनेगा, मतलब 5 minus 2, बीटा इज इक्वल टू 3. नाउ पुट दैट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन 3. अब अल्फा और बीटा की यही दो वैल्यू 3 में पुट करें. कहाँ है 3, इसमें. इसमें इसलिए पुट करते हैं क्योंकि मुझे अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, k की वैल्यू मिल जाएगी. तो देखें, अल्फा को बीटा को पुट करें, k की वैल्यू मिल जाएगी. ये था इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 3/5. बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, बाकी सॉल्व आप करेंगे. ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का.
क्या कहते हैं, गिवन इक्वेशन है mx स्क्वेयर माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0, mx स्क्वेयर माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। और इस पे कंडीशन क्या है कि इसका सम और प्रोडक्ट्स दोनों 3/5 की इक्वल है। सम और प्रोडक्ट दोनों, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/5, मतलब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/5। अब पहले हम इसमें से सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, b/a है तो b की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू m, तो सम ऑफ रूट्स बनता है 3/m। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, c क्या है -n, a क्या है m, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं सम ऑफ रूट्स भी 3/5 की इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 3/5 की इक्वल है। अगर मैं सम ऑफ रूट्स 3/5 की इक्वल लिख लूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3m इज इक्वल टू 15, ये 3 पे डिवाइड करें, m की वैल्यू आ जाएगी 3, समझ आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये मैंने सॉल्व किया, मैं तो कहता था हिंट्स दूंगा आपको, लेकिन मैंने सॉल्व किया। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को 3/5 के इक्वल कर दूं तो -n/m इज इक्वल टू 3/5 लिख ले, m की वैल्यू यहाँ पे 3, तो -n/3 इज इक्वल टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -5n इज 9 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय -5, ये कैंसल, n की वैल्यू -9/5 एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, n की वैल्यू -5/9, m की वैल्यू, अच्छा सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें m की वैल्यू 15/3 से 3 नहीं 5 आता है, और अगर हम यहाँ पे इसको 5 पुट करें तो ये बनेगा 3 5s are 15, और ये कैंसल होके ये बनता है 3, 15/5 से आता है -3, तो m की वैल्यू क्या, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू -3, n की वैल्यू क्या -3। So this is the end of exercise 2.3. We will start in next video exercise number 2.4 and अगर कोई प्रॉब्लम हो आप नोट करें, जब भी स्कूल स्टार्ट हो जाए मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।